Everyone. So today we shall discuss a very important topic of Indian economics, exchange rate. Okay, exchange rate. There are three main topics that we need to discuss: balance of payment, first topic. Second is forex reserves. The third topic is currency convertibility. So let us discuss each one of them. The first topic: balance of payment. Balance of payment, we get to see two accounts mainly. Okay, one is current account and the next is capital account. And again in a current account we get to see what we get to see visibles, in the second invisibles. Invisibles are again subcategorized into ABC. Let us say SIT. Invisible, let us remember this as SIT. Okay, what is it? Services. Wait a second. SIT. SIT. Okay. Services. Income. Transfers. Let us discuss examples of each one of them. But before that, let us see what is capital account too. What is capital account? कैपिटल अकाउंट में हमारा इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स, एनआरआई अकाउंट से सब आती है. क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स, एनआरआई अकाउंट. एनआरआई का जो भी अकाउंट, मतलब एनआरआई हमारे भारत के अंदर जितने एनआरआई अकाउंट्स है उसमें से पैसे बाहर लेके जा रहे हैं या बाहर अंदर आ रही है एनआरआई से, ये सब एनआरआई अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आती है, एनआरआई अकाउंट्स. ओके. एंड बोरोइंग्स का एग्जांपल्स क्या हो सकता है? बोरोइंग्स के लिए ना क्या हो सकता है, जो भी प्लस, ये प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है. हम अब बाहर से लोन ले रहे हैं या फिर हम बाहर लोगों को लोन दे रहे हैं, ये सब बोरोइंग्स भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आती है. एंड इन्वेस्टमेंट्स में एफडीआई या फिर एफपीआई. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ एफडीआई एंड व्हाट इज़ एफपीआई? बाय द वे, एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है? एफपीआई इज़ ऑल्सो नोन एज एफआईआई. व्हाट इज़ एफपीआई? इट इज़ पोर्टफोलियो. And what is FII? It is institutional. Foreign portfolio investment or foreign institutional investment is nothing but investments in the country's share market. And foreign direct investment is nothing but investment in a country's land or assets. Okay, that is the main difference. Now let us see the what are the examples of visibles. Examples हो गए goods. Trade in goods is called visibles. Okay. Trade in services is a part of invisible. And income के लिए examples क्या क्या हो सकते हैं? income के लिए income में आती है, क्या आ सकती है income में? profits. आपने लोन दिया तो उन लोन का इंटरेस्ट भी आएगा. हाँ, आपका फॉरेन में एसेट्स है तो उस एसेट्स का प्रॉफिट्स भी हमारे देश में आएगा. और शेयर मार्केट है तो उस शेयर मार्केट का आपको डिविडेंड्स भी मिलेगा. ये सब इनकम के अंदर आती है. इनविजिबल्स ऑफ करंट अकाउंट में हम क्लासीफाई करते हैं इसको. और ट्रांसफ़र्स के लिए एग्जांपल्स क्या हो सकता है? फॉरेन से आपको जो भी गिफ्ट्स मिलता है, या फिर अगर आपको फॉरेन से कोई डोनेशंस मिलता है, या फिर फॉरेन से आपको रेमिटेंसेस मिलता है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस. हमारे जितना भी यूएस डॉलर्स का इम्पोर्ट्स है ना, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस के अंदर आती है इंडिया में. Okay, India is the world's largest remittance country which receives remittances. Okay. So we have finished the topic of balance of payment. Now let us discuss the next topic. What is the next topic? It's foreign exchange reserves. Okay. What is the rank of India in the foreign reserves? सबसे ज़्यादा foreign reserves किसके पास है? Forex exchange reserves, FER.
इंडिया का रैंक 4 है, इंडिया रैंक्स 4th। सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा चाइना रैंक्स 1st। I think it is around some $3.5 trillion if I remember. I'm not sure. Something around that. Okay. This is a foreign exchange reserves, and foreign exchange reserves में 4 components है. Okay, it has 4 components. What are the 4 components of foreign exchange reserves? पहला आती है FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमें पहले देखने को मिलती है फॉरेन करेंसी एसेट्स। नेक्स्ट आती है गोल्ड रिजर्व्स, एंड तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड फोर्थ पे आती है RTP, रिजर्व ट्रैक के पोजीशन। इस पे ऑलरेडी UPSC ने एक सवाल भी पूछा था, रिजर्व ट्रैक के पोजीशन। रिजर्व ट्रैक के एक क्वेश्चन आया था UPSC PYQ में, और रिजर्व ट्रैक के इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ विच, एंड वहाँ पे कुछ है ऑप्शंस, वर्ल्ड ट्रेड, IMF एक्सेट्रा। तो आपको देखने ही पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक कॉम्पोनेंट है रिजर्व ट्रैक के और गोल्ड ट्रैक के, समथिंग लाइक दैट। एक क्वेश्चन आया था रिजर्व ट्रैक के पोजीशन। ओके, व्हाट इज़ SDR एंड व्हाट इज़ रिजर्व ट्रैक के पोजीशन? वी शैल डिस्कस ईच वन। ओके, यू नो फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑलरेडी। हमारे देश में फॉरेन का एसेट्स कितना, फॉरेन करेंसी का एसेट्स कितना है, चाहे वो डॉलर का हो, युआन का हो, येन का हो। गोल्ड रिजर्व्स कितना है एक देश के पास? आपको अगर याद है तो पहले ज़माने में गोल्ड के बेसिस पे एक्सचेंज होती थी, ना कि डॉलर्स। लेकिन गोल्ड एकदम से गोल्ड ख़त्म हो गया, तो आप क्या बाहर देशों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसलिए हम डॉलर से ज़्यादा ट्रेड करने लग गए थे। ओके, बट यू नो देर आर 4 components ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स: फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड रिजर्व ट्रैक के पोजीशन। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट? व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट बाय द वे? एंड व्हाट इज रिजर्व ट्रैक के पोजीशन? दोनों क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट इज नथिंग बट राइट्स बेस्ड ऑन करेंसी ऑफ अ नेशन इन द IMF कोटा. These rights are based on currency of a nation in IMF quota. This quota, we need this quota because it gives voting power. ये वोटिंग पावर 2 फैक्टर्स, IMF में वोटिंग पावर ना 2 चीज़ों से मिलती है। ये एक है आप कितना आपकी डोमेस्टिक करेंसी डाल रहे हो उसमें, और दूसरा कितने SDR डाल रहे हो। SDR ना ये एक तरह की यूनिट ऑफ अकाउंट ही है। आप ये बोल सकते हो कि ये करेंसी ऑफ IMF है, ये करेंसी ऑफ IMF है। एंड दिस मतलब दिस डिपेंड्स ऑन लाइक वेटेज होती है। सबसे ज़्यादा वेटेज US डॉलर को दिया जाता है इसमें, एंड देन यूरो के बाद हुआ युआन के बाद येन के बाद पाउंड। तो इस तरह वेटेज होती है, US डॉलर्स, यूरो, युआन, येन, पाउंड। ओके, this is special drawing rights. And what is reserve track position? Reserve track position, this is a contribution of member nations to IMF which is higher than IMF quota. Contribution by member nations
to IMF, which is higher than IMF quota. Okay, this why do a country need reserve tracking position? Because it gives special powers to withdraw money from IMF, to withdraw or draw money from IMF without any fee or charges. Okay, this is reserve tracking position. So we have discussed balance of payment, foreign exchange reserves. The third topic comes currency convertibility. Third topic is currency convertibility. इसमें भी हम दो तरह की क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है. एक है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में हम करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में कैपिटल अकाउंट को, मतलब एसेट्स को. लेकिन एक बात याद रखिए, करंट अकाउंट ना फुल्ली कन्वर्टेबल, लेकिन ये पार्शियली कन्वर्टेबल है कैपिटल, क्योंकि अगर बाहर देश उसका पूरा एसेट्स एकदम से विथड्रॉ कर लेती है इंडिया से, तो हमारा इंडिया बैंकरप्सी पे चली जाती है. ओके, लेट अस थिंक दिस, लेट अस से लाइक अंबानी, अदानी जैसे लोग क्या किया, अचानक से उनका पूरा एसेट्स इंडिया से विथड्रॉ कर लिया क्योंकि उसने कुछ करप्शन किया हो, एंड देन दे वेंट एंड सेटल इनटू सम फॉरेन कंट्रीज. तो उस टाइम पे क्या होता है, इंडिया पूरे बैंकरप्सी पे चली जाती है. ओके, सो टू अवॉइड risk of bankruptcy, we only allow partial convertibility and we do not allow fully convertibility, and this is recommended by Tarapur committee. I think it is Tarapur, recommended by Tarapur committee. Okay, yeah. And we shall discuss more about appreciation and depreciation. You know, you might have heard some terms: appreciation and depreciation, revaluation and devaluation. Let us discuss what are they. Okay, for example, let us take a perspective of importer and exporter. I am an importer, importing from USA. क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम? ओके, लेट अस, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम? कुछ भी हो सकता है, हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं. what do we import usually? Maybe we are importing car. ओके, एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ आई एम एन एक्सपोर्टर and I am exporting to USA. What am I exporting this time? I am exporting shoes. Let us take a standard value of US dollar. एक स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं. Let us take that $1 equal to 50 rupees. मान लेते हैं कि ये हमारा $1 50 है. अब क्या होता है कि करेंसी एप्रिशिएट हो सकती है या फिर डेप्रिशिएट हो सकती है. एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट. तो इम्पोर्टर के पर्सपेक्टिव के लिए ये एक प्रॉफिट है या एक लॉस है? एक प्रॉफिट है या एक लॉस है, ये हम देखते हैं. एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से या एक प्रॉफिट है या लॉस है, ये एनालाइज करना है हमको. अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है, मतलब अब हो गया $1, कितना हो गया एप्रिशिएट, मतलब $1. ओके, $1 हम एज्यूम करते हैं 100 रुपीज़. ओके, दिस इज़ मोर बेटर.
सो करेंसी अप्रिशिएट हुआ मतलब $1 अब 50 रुपीज़ हो गया। $1 अगर 50 रुपीज़ होती है तो मैं ज़्यादा इंपोर्ट करूँगी ना, इंपोर्ट इंक्रीज़ करूँगी। अगर मान लो वन कार, मान लो टॉय कार मान लो इसको, अगर वन कार $1 है, अगर वन कार $1 है तो मैं कितने कार्स इंपोर्ट कर सकती हूँ? $1 100 रुपीज़ से पहले तो मैं 2 कार्स इंपोर्ट कर सकती हूँ, तो मुझे तो प्रॉफिट ही हुआ ना। वही एप्रिशिएट होगा तो इम्पोर्टर को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर डेप्रिशिएट होती है, एज्यूम दैट $1 नाउ इज़ 200 रुपीज़, so what happens now, I can only import half car, मतलब I can't import a car, a toy car assume कर रहे हैं हम, we can import only half car, this is a imaginary example, मतलब हम import नहीं कर पा रहे हैं, so this is a loss for us, okay। एप्रिशिएशन, सिमिलरली एप्रिशिएशन की केस देखते हैं। नाउ लेट अस से शूज़, वी आर एक्सपोर्टिंग शूज़ ऑफ फॉर हाउ मेनी रुपीज़, 100 रुपीज़ का हम शूज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। यूएस में कितने में बिकेगी? यूएस में $1 पे बिकेगी 100 रुपीज़। लेकिन अब क्या हुआ कि करेंसी अप्रिशिएट हुआ, करेंसी अप्रिशिएट हुआ यूएस की मार्केट में। हमारी मतलब इंडियन रुपी अब ना 50 रुपीज़ हो गई, ओके, 50 रुपीज़ हो गई। तो इसका मतलब ये लोग अब कितने में परचेस करना पड़ेगा 100 रुपीज़ का शूज़? $2 में, $2 में वो शूज़ परचेस कर पा रहे हैं। पहले $1 था, अब $2 है, तो महंगा हो गया ना। 100 रुपीज़ का शूज़ वहाँ पे महंगा हो गया, पहले $1 थी, लेकिन अब शूज़ मतलब 50 रुपीज़ हो गया ना $1, तो वो 2 शूज़ $1 में, वो ना $2 पे एक पेयर ऑफ शू खरीद पा रहे हैं, तो ये एक लॉस है। सिमिलरली अगर करेंसी डिप्रिशिएट होती है, 200 रुपीज़ हो जाती है, तो वो वन शू हाफ, इट बिकम्स $1/2 पे ही वो शूज़ खरीद सकते हैं। तो इट इज़ लाइक इट बिकेम $2, दैट मीन्स they can only buy half, so this is a loss. But if it is 200 rupees, it is a profit for them, because now it is only for $1/2. $1/2 implies I can buy 2 shoes now. 2 shoes implies this is a profit, okay। ये सिंपल एग्जाम्पल है। अगर $1 50 रुपीज़ हो जाती है तो मुझे $2 पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़ शूज़ को ख़रीदने के लिए, ओके। मतलब मुझे $2 पे करना पड़ेगा, मतलब $1 पे मैं सिर्फ हाफ शू खरीद सकती हूँ, मतलब ये तो लॉस ही है। सिमिलरली अगर $1 200 रुपीज़ हो जाती है तो मैं सिर्फ $1/2 पे ही 100 रुपीज़ का शूज़ खरीद सकती हूँ, मतलब $1 पे मैं 2 शूज़ खरीद सकती हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, एक एक्सपोर्टर होते हुए मुझे प्रॉफिट हुआ। करेंसी ये सिंपली ये याद रख सकते हो कि अगर हमारी इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होती है तो इंपोर्टर के लिए प्रॉफिट है और एक्सपोर्टर के लिए लॉस है। इंपोर्टर के लिए प्रॉफिट है और एक्सपोर्टर के लिए लॉस है। अगर करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो इंपोर्टर के लिए एक लॉस है और एक्सपोर्टर के लिए एक प्रॉफिट है। तो आपको पता है 1991 में क्या हुआ, करेंसी को डिप्रिशिएट किए हम, क्योंकि एक्सपोर्टर के लिए फ़ायदा हो सके। हमारे गुड्स अगर सस्ता होती है मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। तो वही डिप्रिशिएट सस्ता होने के लिए करते हैं हम, ये सस्ता इन यूएस, एंड एप्रिशिएट हम महंगा,
महंगा कर देती है सामान को यूएस में. Okay, that is what, if you know, China willingly depreciates its currency just to increase its exports. Okay, if I would like to ask you a question. What is difference between depreciate and devaluate? डिप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन, इन दोनों के डिफरेंस क्या है? वी ऑफन यूज़ द टर्म डिप्रिशिएट और एप्रिशिएट, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन. व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन इज़ यूज्ड इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट and devaluation or revaluation are used in the fixed exchange rate. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है. दिस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दिस इज़ बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. Is based on demand and supply. But a fixed exchange rate, this is not based on demand and supply. In fact, it is regulated by RBI. Regulated by RBI or Central Bank of a country or whatever it is, some government. Okay. कई बार हम इनको डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं. ओके, वी ऑल्सो कॉल इट एज डर्टी फ्लोट. सो व्हाट इज़ डर्टी फ्लोट? डर्टी फ्लोट इज़ नथिंग बट मैनेज्ड फ्लोट. आरबीआई कंट्रोल करती है. मतलब अगर मार्केट में डिमांड, डॉलर्स का डिमांड ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, आरबीआई क्या करती है, डॉलर को सेल करती है और रुपीस को बाय करती है. बस उतना ही. फॉर एग्ज़ाम्पल $1 equal to 80 rupees, you know that. But what if $1 becomes $1 equal to 80 rupees? But what if $1 becomes 70 rupees and what if $1 become 100 rupees? यहाँ पे आरबीआई को कुछ तो कुछ करना पड़ेगा. यहाँ पे डॉलर्स मार्केट में आरबीआई क्या करती है, मतलब यहाँ पे किसका डिमांड ज़्यादा है? 100 रुपीज़. मतलब रुपी सस्ता हो गया, मतलब रुपीज़ आर मोर, सो आरबीआई विल बाय रुपीज़ एंड सेल डॉलर. यहाँ पे रुपी एप्रिशिएट हुआ, मतलब मार्केट में रुपीज़ कम है तो आरबीआई क्या करेगी, सेल रुपीज़ एंड बाय डॉलर्स. सिंपल. ये आरबीआई का डर्टी फ्लोट और या फिर मैनेज्ड फ्लोट बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए मार्केट में. वी कैन डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, दैट इज़ import cover. What is import cover? Import cover is nothing but number of months of import that can be covered with the foreign exchange reserves available with the country's central bank. Okay, number of months of imports that can be covered with foreign exchange reserves available. अगर 1 मंथ में आप $25 इंपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास एज्यूम करो वो $100 है, तो कितने मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स डू यू नीड? यू नीड जस्ट 4 months. ओके, 4 months में आपका पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो जाएगा. यही है इसका मतलब. नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कैन बी कवर्ड विद द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अवेलेबल. आपका डिमांड $25 डिमांड है 1 महीने के लिए. ओके, तो वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $100 में आप सिर्फ 4 months का डिमांड 4 months फुलफ़िल कर सकते हो.
हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जितना करेंटली ना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1 ईयर तक आप हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हमारे डिमांड को हम फुलफ़िल कर सकते हैं विदाउट एनी सप्लाई. वी कैन cover it up to 1 year. Okay, this is import cover. And there are also 2 more topics under currency convertibility: nominal exchange effective rate and real effective exchange rate. This is nominal and this is real. Let us discuss them. What is nominal effective exchange rate and what is real effective exchange rate? Nominal effective exchange rate is nothing but the weighted average of all the currencies. For example, see, just based upon the US dollar, you cannot assume that Indian rupees appreciated or depreciated. We need to take weightage of certain other currencies also. So हम weightage लेते हैं डॉलर, यूरो, येन, युआन, पाउंड, इन ऐसे करेंसीज़ का हम एक वेटेज लेते हैं 40%, 20% एक्सेट्रा, ऐसे कुछ वेटेज देते हैं सब करेंसीज़ का. हम एक एवरेज निकालते हैं. Okay, so we say whether the currency is appreciated or depreciated based upon this. And similarly, real is also the same thing. Real effective exchange rate, real, it is also the same thing, but इसमें inflation की factor included है. Okay, real is nothing but sigma of near nominal effective exchange rate times इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय आवर पार्टनर कंट्री, इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, इनका आप वेटेड एवरेज निकालते हो, वेटेज ऑफ पार्टनर. ओके, ये वेटेज है. सो टेल मी व्हाट हैपेंस इफ नियर और रियर इंक्रीज? रुपी विल एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट? रुपी एप्रिशिएट्स. अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो रुपी विल एप्रिशिएट. अगर वेटेज कम हो जाती है तो इसका मतलब रुपी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया. सो दिस इज हाउ द वेटेज इज कैलकुलेटेड. अगर वेटेज बढ़ती है, नियर और रियर बढ़ती है तो रुपी एप्रिशिएट होती है. अगर वेटेज कम होती है, मतलब नियर और रियर कम होती है, तो रुपी डेप्रिशिएट होती है. इतना तक ही. आई होप you enjoyed the session and you understood the exchange rate. Thank you very much.